बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नक्शे कदम में चामराजनगर के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का जो कोटा का जानिब से मुनक्किद किया हुआ इस कॉन्फ्रेंस के सदर जलसा हज़रत मौलाना नईमुल्लाह हक साहब इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा, मुअज़्ज़िज़ गेस्ट शिव सुंदर सर, हज़रत मौलाना शाह वली साहब अहले हदीस जमात मैसूर, अभी आपके सामने खिताब फरमाए हुए हज़रत मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब, दूर से हमारे बीजापुर से लंबी सफ़र कर कर आए हुए हज़रत मौलाना तनवीर हाशमी साहब, हमारे मुअज़्ज़िज़ दोस्त कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के स्पोक्स पर्सन एम लक्ष्मण सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल पार्ट्स को मेंबर हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिकार साहब और स्टेज में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, तमाम आर्गनैजेशन से आए हुए साथियों, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ, ರೈತಪರ, ದಲಿತಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರೇ, ನನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು, ವಿಚಾರ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ನಾವೇ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನಿದೆ, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣ. ಈ वक्फ एक्ट जो है जारी तो कर लिए, अभी अमल में आना बाकी है. एक्ट बन गया, कोर्ट में रहने की वजह से ये अमल में नहीं आया. अमल में आया तो क्या होगा? अमल में आया तो मेरा मुअज़्ज़िज़ साथियों, इंडिया का 50% जमीन, 50% हमारा जो वक्फ का जायदाद, हमारा कब्रिस्तान, हमारा मस्जिद, हमारे दरगाह, हमारा खानखान चला जाएगा. याद रख लो, 50%, क्योंकि ये कानून जो है उतना खतरनाक है. क्यों लाया गया ये कानून, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर इंसान जिंदा रहना तो क्या होना? ऑक्सीजन होना. ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬದುಕಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೇಕು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಶ್ಯೂ ಬೇಕು. ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸದೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಅಜೆಂಡಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹೆಸರು ಬಳಸದೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದಾಗೆ, ಆಮ್ಲಜನಕ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಸಮಾಧಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ
ಅವ್ರು ಆಗ ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಶ್ಯೂ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ವಕ್ಫ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡಿನೇ ಇವ್ರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿ, ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಉರ್ದುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಇದು ವಿಷಯ ತಲುಪಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜಾತ್ಯತೀತರು ಪ್ರಗತಿಪರರು ಯಾಕೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಶಿವಸುಂದರ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಕ್ಫ್ಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅದು ಅವನ ಇಷ್ಟ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಓಕೆ ಅದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು? ಮೋದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸೀದಿ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದು ಚೌಕಿದಾರ್ನಂಗ್ ಮಸೀದಿ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರ, ಇವನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ಇವನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ದ, ಇವನು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಇವನ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ. ಇವನು ಯಾರೋ ಚಾ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಅಬೂಬಕರ್ ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಬೇರೆ. ಈ ರೀತಿ ಚೌಕಿದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರು, ಎಷ್ಟು ದಡ್ಡರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ರಾಯಪ್ಪ ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮೇರಾ ಖುದ್ ಕಾ ಜಾಯದಾದ್ को मैं किसे भी जाना तो ये कह रहा मेरा बावा मोदी या अमित शाह उससे पूछते हैं, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಿ ನಾನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಕ್ಕೆ? ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆದದ್ದು. ನನ್ನ ಹಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ತಡೀಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾನು ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ದಾಸಪ್ಪಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಕರೆದುಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹಕ್ಕು. ಅದು ಮೋದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಈ ವಿಚಾರ ಇರೋಣ. ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿವಸುಂದ್ರ ಅವರು, ವಕ್ಫ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇಟ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ. ಅದು ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇವರ ಈ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ 5 ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕು 11 ಜನರಲ್ಲಿ. ಬಾಕಿ 7 ಜನ ಏನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ बहुत अहम चीज क्या है, इससे पहले का एक्ट में वक्फ ऑफिसर होती है सीईओ, वो सेंट्रल का हो स्टेट का हो, मुसलमान ही होना था. अभी मुसलमान होना का जरूरत नहीं. समझ रहे आप बात? समझ में आ रहा? अभी का जो एक्ट में क्या था, मुसलमान ही होना सीईओ. अब का एक्ट में ऐसा नहीं है, कौन भी हो सकता है. इसका मतलब क्या है, एक आरएसएस कैडर को ये आदमी वक्फ का ऑफिसर बना को बिठाएंगे. ये साजिश है. किसको बिठाती नो? आरएसएस के आदमी को बिठाती. डोंटिश नहीं है तुम ना. क्या कहते, हमें देख रही 10 साल से क्या हो रहा है इस देश में करके. और दूसरा एक खतरनाक एक कानून ये लोग लाए, कौन सी भी वक्फ जमीन में 12 साल से हैंगर को बोले तो वो पूछे जैसा नहीं, उनको कानून बोलता है. अंबानी का घर है नहीं मुंबई में, एंटीला जो है मुंबई, सुनी ना तुम्हें, देखी भी सुनी भी, वो जमीन वक्फ का करीब 2002 से वो चल लेकर है कोर्ट में. अब ये एक्ट तो क्या बोलता है, 12 साल से एक आदमी वक्फ का जमीन में रहा तो उसका हो जाएगा. मगर हिंदू एंडोमेंट कानून में
क्रिश्चियनों में ये नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, कितना साल हुआ तो भी हमें पूछ सकती। समझ में आ रही बात? ये क्या, ये डिस्क्रिमिनेशन है। मुसलमानों को एक कानून, हिंदू को एक कानून, क्रिश्चियन को एक कानून, ऐसा 12 साल से अगर कोई भी है बोले तो उनका जमीन। अब ऑटोमेटिकली कानून जारी है बोला तो एंटीला टाइमिंग नहीं कर सकते, चलेगा वो आपका जमीन से। ये और बहुत दर्द के साथ आपका सामने मैं बयान करना चाहता हूं। क्या हमें खोलिए इतने साल से बोले तो कर्नाटक का एग्जाम्पल मैं देता हूं। कर्नाटक में 1,12,000 एकड़ वक्फ का जमीन था। कितना? 1,12,000। अभी कितना है मालूम आपको? 23,000 एकड़, 23,000 एकड़। ये 75,000 एकड़ कैसा गया मालूम? कर्नाटक में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बोल कराया, उसमें गया। हालांकि वक्फ का जमीन कोई अप्लाई नहीं होता। समझ में आ रहा? ये जो रिलीजियस पर्पस के लिए दिया हुआ है, उस टाइम में हमारे जिम्मेदारान, बहुत अफसोस के साथ मैं बोलता हूं, हमारे जिम्मेदारान उस टाइम में देवराज अरस्ते अगर चीफ मिनिस्टर जाको बात करते उस टाइम में ये वक्फ का जमीन को इसमें से हटाना बोले तो वो हटा के कानून कर सकते थे। जो वक्फ का जमीन रिलीजियस पर्पस के लिए है, ये हटाओ बोले तो उस टाइम में हटा सकते थे। चलो चले गया। उसके बाद उस टाइम का वक्फ बोर्ड हो, जिम्मेदारा हो, कोर्ट को जा सकते थे, कोर्ट से खड़ा कर सकते थे, स्टॉप कर सकते थे, हमारा हुकूक हमें ले सकते थे। मगर अफसोस इस बात की है वो जिम्मेदार उसके बारे में फिक्र करे नहीं, सोचे नहीं, चले गए। हमारा 70,000 एकड़ जमीन। एक जजमेंट है, आप पढ़ना हमारे नौजवान साथियों। उडुपी आदमार मठ वाज अ स्टेट ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट। उडुपी का आदमारू मठ का जमीन ऐसा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में गया था। भू न्याय मंडली में एक आदमी उसमें वो मठ का जमीन में खेती बाड़ी कर ले करता, उन्हें क्या करे, एप्लीकेशन डाल भू न्याय मंडली में और इसका ट्रिब्यूनल में, लैंड ट्रिब्यूनल में। लैंड ट्रिब्यूनल उनको दिए, उसे क्या कहते लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में उसे होता है उड़वाने के भूमि कर दो। उसके बाद मठ वाले कोर्ट को गए, हाई कोर्ट को। ये जो जमीन जो है ये रिलीजियस पर्पस के लिए दिया हुआ जमीन है, ये व्यक्ति का नहीं है, इंडिविजुअल का नहीं है या गवर्नमेंट का नहीं है। ये जो मठ का है, मठ जो है रिलीजियस पर्पस के लिए दिया हुआ जमीन है, उसलिए ये लैंड रिफॉर्म्स में नहीं आता बोलकर वादा करें वो एडवोकेट्स, वो मठ वाले। वो आदमी से छीन कर मटकू हो गया वो जमीन। ये जजमेंट है कर्नाटका का। अगर मटकू जजमेंट होता है, देवल को यह जजमेंट होता है, वक्फ को क्यों नहीं होता? ये कोताही हमारे से हुआ है नौजवान साथियों। क्योंकि हमारे परेशानी क्या मालूम, हमें फुल बिजी, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे बिजनेस, ये छोड़े तो दूसरा सोचते नहीं। हमें आजकल माँ बाप का भी सोचने छोड़ दिया। हमें मेरे बीवी मेरे बच्चे अच्छे रहे तो बस, मेरा बिजनेस अच्छे रहे तो बस, माँ बाप का भी सोचने का छोड़ दिया आजकल। कौम का फिक्र करने वाले इस देश में क्या हो लेकर है, इस स्टेट में क्या हो लेकर है, इस नगर सभा में क्या हो लेकर है, इस पंचायत में क्या हो लेकर है, हमारे माहौल में क्या हो लेकर है, क्या साजिश चल रहा है, इसके देखने वाले सोचने वाले लोग नहीं हैं, फिक्र करने वाले लोग नहीं हैं। वो आरएसएस करती है, वो बजरंग दल करती है, वो दूसरे कम्युनिटी करता है। ये जो वक्फ एक्ट आया ना, वक्फ एक्ट, क्या समझ को ये वक्फ एक्ट जो बनाए है, क्या किरण रिजिजू बनाया कर को सोच करें क्या आप? ये एक्ट जो है आरएसएस का टॉप एडवोकेट्स, टॉप इंटेलेक्चुअल्स बैठ को बनाती, खाली पेपर देते सो इनो क्या करते सो,
पेपर देते सो, इन्हों जाको उसको देखो पढ़ना सो, बनाते सो कौन? आरएसएस का माइंड जो है, आरएसएस का इंटेलेक्चुअल्स जो है, ये लोग बनाती। ये सर पूरे पपेटा इन लोग, उन्होंने क्या बोलती? नागपुर का आरएसएस का बिल्डिंग में क्या तय होता है वो मोदी लेके आता है, अमित शाह लेके आता है। ऐसे सोचने वाले हमारे कौम में कौन नहीं? ऐसे फिगर करने वाले कौन नहीं? 24/7 वॉच डॉग का जैसा देश में क्या हो रहा है, स्टेट में क्या हो रहा है, पंचायत में क्या हो रहा है, नगर सभा में क्या हो रहा है, वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है, मीडिया में क्या हो रहा है, कौन देख रही भाई? बिरयानी खा ले को मस्त है हमें, करोड़ों लाखों रुपया शादियां को खर्चा कर ले को। हमारा उलमा अकरम, मुअज़्ज़िज़ उलमा अकरम, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये रोकना है। कल मैं एक शादी को गया था, हमारे हजरत हासिम साहब को उसी टाइम में फोन करे, मुझे बिजापुर से फोन उठा नहीं सका, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। वो बम्बड़ी में शादी में जो आए हुए मेहमान को बात करे जैसा नहीं, फ्रेंड्स को बात करे जैसा नहीं, क्या भी सुनता नहीं, क्या भी करता नहीं, क्या चल रहा है? ऐसे निके को हम लोग नहीं जाते, नहीं आते बोलने में उलमा को क्या दिक्कत है? मना करना है ऐसी शादियों का, या ऑर्केस्ट्रा वाले शादियों का। बर्बाद हो रहा है हमारा कौम, वक्त बर्बाद हो रहा है, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारा एजुकेशन बर्बाद हो रहा है, हमारे लोगों को खुलेआम कत्ल कर रहे हैं। यह सब चलने के टाइम में ये लोग का ऐसे लाविश खर्चे, ऑर्केस्ट्रा नाम के खर्चा कर लेकर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है मुझे बोलने के लिए, इस वजह से ये नौबत की परेशानी आया है। हमारे मौलाना बताए चीज क्यों ये आया, हमारा मुसीबत हमारे वजह से आया है। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं रहने की वजह से मैं ज्यादा बात नहीं करता। बहुत सारे मुतवल्लिस बैठी हैं, काम भी रहेंगे मुतवल्लिस, जेल को जाने तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। तैयार ही इंशाअल्लाह। नया कानून क्या बोलता है मालूम? ये एक्ट आ गया, जारी को आ गया तो 6 महीने के अंदर पूरा तुम्हारा डॉक्यूमेंट देना, पूरा डॉक्यूमेंट तुम्हें देना। डॉक्यूमेंट अगर नहीं दिए कहां जाना? जेल तो जाना। ये नया कानून है, इतना खतरनाक है। और दूसरा ये बताए ना, वक्फ यूजर का डॉक्यूमेंट क्या ले लेकर थी। एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तुम्हें बता तो मैं खत्म कर दो। 2006 में उत्तर प्रदेश का सुन्नी वक्फ बोर्ड ताजमहल को वक्फ बोलकर रजिस्टर करे, ताजमहल को वक्फ का जमीन कर को रजिस्टर कर लिए, नोटिफिकेशन कर लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड यूपी। दूसरे जो दुश्मना ने सुप्रीम कोर्ट को गए, क्या पूछे मालूम? सुप्रीम कोर्ट को, वक्फ बोर्ड वाले को, शाहजहां लिखा सो डीड ले लेगा बोले, तुमने शाहजहां वक्फ करी सो डीड क्या वसीयतनामा लेके आओ करके बोल, तो कौन बोले सो? सुप्रीम कोर्ट। अब कहां से फिर गया मैं? हमारा नाना दादा का नहीं है हमारे पास डॉक्यूमेंट, शाहजहां का डॉक्यूमेंट कहां से लाए? अब श्रीरंगपट्टा का बहुत अच्छे, अभी वो वक्फ का साथ है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी है, वक्फ का साथ भी है। तो हमारा रिलीजियस एक्टिविटीज चलना, वो मॉन्यूमेंट को देखना, करना, प्रोटेक्शन करना, उन्होंने करेंगे, मगर हमारा 5 वक्त की नमाज चलना, वो मस्जिद है, ताजमहल में मस्जिद है, 5 वक्त का नमाज चलना ना, उसे भी अब रुकावट ये मामले में। तो हालात बहुत खतरनाक है, हम लोग जागना है। जैसा कि इधर हमारे मुफ्ती साहब बताया, ये एक प्रोटेस्ट है, ये खत्म होने वाला नहीं है, ये हमारा हुकूक है। ये देश मोदी का बाप का देश नहीं, समझो, ये देश मोदी का बाप का नहीं, अमित शाह का बाप का नहीं, हमारा देश है। ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮದು, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟವರು, ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟವರು ನಾವು। ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ನೀವು ತಯಾರಿರಬಾರ್ದು। ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದ್ರೂ, ಯಾವ ದಳಪತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ,
ಯಾವ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕು ತಯಾರಾಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. अगर हमारे आने वाले नस्ल को एक फ्रीडम चाहिए, एक बेहतरीन मुल्क चाहिए, एक आजाद मुल्क चाहिए, तो कुर्बानी कौन देना पड़ेगा? ये एक जनरेशन इंशाल्लाह कुर्बान दे डालेंगे इंशाल्लाह। इतने ही कहते हुए मैं बात को खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद।